Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers. Today I am going to discuss on the topic of establishment of company rule in India. This is the 9th chapter of class 8 in SST. As you know well, this is the figure of world map. So a lot of companies used to come in our country because when they come in our country, they used to purchase some product like silk, paper, spice, cotton, indigo, clothes, and sell factory. By this way, they were purchasing these items at a very cheap rates, and they were selling this product in Europe and other countries at a very high cost. In this way, they were getting money. So after some time, Turkish occupied this route, and they didn't permit any European traders or adventurers or missionaries to come in our country. Then the two person, first is Columbus and second one is Vasco da Gama. They wanted to search what is the way of India. So firstly, Columbus wanted to discover India, since he knew this fact that earth is round, so he wanted to move and after that reach India. But when he moved towards this way, then he went towards America. Then Columbus discovered America. But Vasco da Gama, he was a very clever person. He came with his ship by this way. He was coming by this way, and here is Cape of Good Hope. By passing Cape of Good Hope, he went at Calicut at 1498. After that, a lot of companies used to come in our country. The name of that countries were French, Dutch, British, and Portuguese. These are the names of companies. Since India is in the east of these countries, that's why this name was given, like French East India Company, Dutch East India Company, and British East India Company, and Portuguese East India Company. This name was given. In Europe, if you talk about Europe, in England, there was only one company, because there was a King Elizabeth. Since East India Company was established in 1599, and this company sent to in our country in 1600 BC. And Elizabeth appointed a council of ministers where 24 members are present to control this East India Company, for controlling East India Company. When the British East India Company came in our country, there were 3 ports, Bengal, Mumbai, and Madras. And after some time, Surat became a new company, new trading post. If you talk about Bengal, then Fort William. If you talk about Madras, then St. George. And if you talk about Bombay, then Bombay Castle. These are the trading posts which was very, very popular at that time. British wanted to trade with India, but after some time, he became the imperial power in our country. Because there was a lot of countries, just like Dutch East India Company, French East India Company, Portuguese East India Company. So they fighted with each other because they wanted to get the monopoly of trade. That's why they fighted with each other. And if anyone found any other ship in the Hind Ocean, they began to dip that ship. देखिए ये था क्या, ट्रेडिंग कंपनी की जब हम बात करते हैं तो यूरोप से ढेर सारे व्यापारी पहले आया करते थे स्थल मार्ग से, और भारत में आकर के व्यापार करते थे। अब हुआ क्या कि यहाँ से आते थे, व्यापार करते थे भारत में बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे, जैसे सिल्क हो गया, पेपर हो गया, स्पाइस हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगा हो गया। तो ये सब बहुत चीप रेट पर उनको मिल जाती थी, और यही चीज़ लेकर के वो यूरोप में बहुत हाई प्राइस पर बेचते थे। अब इससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। लेकिन तुर्कों ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा मुनाफा ये सब लेके चले जा रहे हैं, तो तुर्कों ने क्या किया, इस मार्ग पर ही कब्जा कर लिया। अब
चूँकि इनको ये पता था कि भारत से बहुत ज़्यादा व्यापार करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कम समय में कमाया जा सकता है, तो इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता हो पाए जिससे हम भारत की ओर आ सकें। तो इधर से अमेरिका ये जो है कोलंबस निकलता है। कोलंबस सोचता है कि अर्थ तो राउंड है, तो हम ऐसे घूम के जाएंगे तो भारत में आ जाएंगे। लेकिन वो जब ऐसे घूम के निकला तो अमेरिका वाले कंटिनेंट में चला गया। इस तरह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी। लेकिन वास्को डी गामा बहुत चालाक था। उसने क्या किया, जो कंटिनेंट थे उसके किनारे किनारे से गया और इधर अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप है, और इसी से होता हुआ जो है केरल के तट पर कालीकट में पहुंचता है 1498 को। इस तरह से भारत की खोज हो जाती है। तो इसीलिए वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। ये पुर्तगाल का निवासी था। अब जैसे जैसे अन्य लोगों को पता चलता है कि भारत का कोई सी रूट भी माध्यम है, तो ढेर सारे लोग वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर केवल एक ही कंपनी को अधिकार दिया जाता है, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कंपनी इधर से आती है और व्यापार करती है, और अन्य लोगों को यूरोप में ब्रिटेन में व्यापार करने का एक अधिकार नहीं मिला था। इसे केवल चार्टर मिला था। लेकिन ये तो अपने कंट्री में नहीं ये पावर यूज कर सकती है, अन्य कंट्रीज़ पर इसका कोई बाउंडेशन है नहीं। तो अन्य सारे लोग जो है अपनी अपनी कंपनी बना करके भारत में व्यापार करने लगे। लेकिन इससे चूंकि एक ही पेन अगर मान लो हो अगर आपके पास, या एक ही कार है और ढेर सारे उसके खरीदार हैं, तो उस कार का दाम हाई हो जाएगा। ठीक यही चीज़ हो रही थी। तो चीज़ें महंगी मिलने लगी थी और ये चीज़ें ब्रिटिश को बहुत नागवार गुजरती थी। इसलिए उन्होंने अदर लोगों को भारत से हटाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जब कोई जहाज़ जब किसी कंपनी की शिप जो है अकेले में किसी दूसरे कंपनी की शिप के पास पहुंचती थी, तो लोग एक दूसरे की जहाज़ को डुबोने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो यही इसी क्रम में जो है एलिजाबेथ ने 1599 में जो है बनाया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 1600 ईस्वी में भारत आई थी। और इस कंपनी पर नियंत्रण के लिए 24 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया था। और ये जब कंपनी आती है तो भारत में 3 मुख्य व्यापारिक केंद्र खोलती है, बंगाल, मुंबई और मद्रास में। इसके बाद कुछ समय के बाद सूरत में भी एक अलग ट्रेडिंग पोस्ट खोल दिया जाता है। वैसे तो ये आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है लोग थे व्यापार करने के लिए कि उनको जो है उनसे प्रतिस्पर्धा करना था। तो पूरे व्यापार पर एक अधिकार ये करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अन्य कंपनीज से जो है फाइट किया। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वार की। लिसन, फर्स्टली यू शुड सी दिस मैप। हियर इज पुडुचेरी विच वाज अंडर द फ्रेंच, एंड हियर इज मद्रास विच वाज अंडर द ब्रिटेन और इंग्लिश, एंड हियर इज बंगाल, एंड हियर यू कैन सी अर्काट रीजन। हियर इज अर्काट रीजन। फॉर अचीविंग अर्काट they fighted with each other. It means French and Britain fighted with each other, but they did not want to fight directly. They took help from French, took help from Chanda Sahab, son-in-law of Nizam of Hyderabad, and English took help from Muhammad Ali. He was the son of Anwaruddin. He was the Nawab of Carnatic. In this war, Dupleix won. But do you know what is the reason behind it? This region is related to Europe. And do you know there are 2 other companies, Dutch East India companies and Portugali East India company. But he left this battle. Do you know how? Then listen. The King of England, Charles II, he was married to a girl whose name was Braganza. She was the daughter of John IV. John IV was the Portuguese king. That's why Portuguese left this place, and they resided in Southeast Asian countries like here, in there. They Dutch went here, this place. Portuguese went this place, Indonesia region. And do you know about Dutches? They were expanding their powers in Travancore region. Do you know the king of Travancore was Martand Varma? When Martand Varma saw this fact, he became very angry. He began to attack on Dutch East India Company in the Battle of Colachal. In the Battle of Colachal, Martand Varma defeated Dutch,
and Dutch had to shift their place in Indonesia, Malaya, like this region. And you should know to fact, Saint George it was under the Madras English, and Saint David it was under the English, and Pondicherry and Karaikal it was under the French. Do you know what is the region of Carnatic? Carnatic was spreaded from Bengal to Tamil Nadu here, and between here is Bay of Bengal and here is Eastern Ghat. Between Eastern Ghat and Bay of Bengal, this Carnatic region was expanded. So Britishers and French, they were fighting for the throne of Austria in Europe region. In 1745, British East India Company attacked on Friendship. Here is Friendship. Britishers attacked on Friendship in the Hind Ocean. When this news got by Dupleix, Dupleix became very angry. He called Bourdonnais. Bourdonnais was the king of Mauritius. And Bourdonnais came. With the help of Bourdonnais, he began to attack on the Madras region. Here, this is the Madras region. With the help of Bourdonnais, Dupleix attacked on Madras. And since the power of French being expanded in this region, so the Nawab didn't want to bear this fact. So Anwaruddin, who was the Nawab of Carnatic region, he wanted to fight with French. So he fighted, but Anwaruddin was defeated by French. French won this battle at the place of Adyar. Adyar is also called Saint-Thome. Okay, and the war was ended. And Britishers saw this fact that French was winning at every turn. French was giving a challenge to Britishers at every turn. So they did treaty with French at the place. The treaty was the name of that treaty was Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle. By this Aix-la-Chapelle, Louisbourg, which was established in Canada, and it was under the British, but this place was given to French. And Madras region, now Madras is under the control of French, but it was given to Britishers थ्रू एक्सला चैपल. देखिए क्या था, देखिए इसमें ब्रिटिश और फ्रांस जो है, ये जो प्लेस है कर्नाटक रीजन का, अरकाट वाले रीजन के लिए, जो ब्रिटिश, फ्रांस और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड वाले, ये दोनों इस क्षेत्र को जीतने के लिए एक दूसरे से लड़े थे. एक तरफ चांदा साहब और डुप्ले की सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन और मोहम्मद अली की सेना थी. मोहम्मद अली जो है अनवरुद्दीन के लड़के थे. ठीक है, इसमें ये डुप्ले भारी पड़ गया. अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी रूपरेखा देख लीजिए. चूँकि इसके साथ साथ जो है दो लोग और थे भारत में, एक डच थे और दूसरे पुर्तगाली थे. अब पुर्तगालियों को कैसे शांत किया अंग्रेज वालों, ब्रिटिशर्स ने, उसने क्या किया, इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स सेकेंड, उसने अपना विवाह जो है ब्रिगेंजा से किया था. ब्रिगेंजा जो थी पुर्तगाल के राजा जो है जॉन फोर्थ, इसकी लड़की थी. इसकी जब शादी हो गई तो ये पुर्तगाली ये वाला बेल्ट छोड़ करके ये इंडोनेशिया वाले बेल्ट पे चले गए. इधर आप देखोगे इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलाया, बोर्नियो, इस तरह से बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो ये इधर चले गए. अब तो इधर इनका काम तमाम हो गया. इधर डच वाले जो थे, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये वाला एरिया पूरा ट्रावनकोर का एरिया है. ये रेड कलर से आप देख रहे होगे, ये ट्रावनकोर का एरिया है. और यहाँ पर एक राजा थे जिसका नाम था मार्तंड वर्मा. इन्होंने क्या किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार चूँकि इधर हो रहा था, ऐसे ये गुस्सा होकर के उसको कैथेड्रल नामक स्थान पर डचों को पराजित कर देते हैं. तो डच ये क्षेत्र छोड़ करके ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की ओर भागते हैं. इसकी जो वास्तविक शुरुआत थी कि
अंग्रेज और ब्रिटिश लड़े थे, इसकी शुरुआत जो है ऑस्ट्रिया में हुई थी। ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस वाले एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ पहला कदम क्या था कि 1745 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, फ्रेंच की शिप को डुबो दिया। यहाँ पर फ्रेंच की शिप थी, इस पर अटैक करके ये ब्रिटिश वालों ने फ्रेंच की शिप को डुबो दिया। अब यहाँ पर डुप्ले देखा कि हमारी शिप को यहाँ पर डुबो दिया गया। अब डुप्ले इतना गुस्सा हुआ कि वो मॉरिशस के राजा बुर्दने की सहायता से जो है फ्रेंच वाली जो क्षेत्र है मद्रास में, जो है मद्रास वाले बेल्ट को, सेंट जॉर्ज को ये तहस नहस करना शुरू कर देता है। अब उस पर अटैक करके इस रीजन को अपने अंडर में कर लेता है। अब ये वाला जो बेल्ट जो है इसके अंडर में आ गया था, तो कहते हैं कि अब तो बात बिगड़ गई। अब ये पार्ट जो है इनके अंदर चला गया, तो ये जो है जाते हैं नवाब, कर्नाटक के नवाब के पास। तो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, वो उससे कहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए, तो वो इनकी सहायता करता है। तो वो जो है फ्रेंच से वार करता है जो है अड्यार नामक स्थान पर, जिसको अड्यार का दूसरा नाम था सेंथोम, इसीलिए इसको सेंथोम का युद्ध भी बोलते हैं, अड्यार का भी युद्ध बोलते हैं। लेकिन इधर फ्रेंच की सेना जो है अनवरुद्दीन की सेना को हरा दी। वैसे तो अनवरुद्दीन की सेना जो है बहुत विशाल थी, लेकिन इसके पास आधुनिक हथियार थे जिसकी सहायता से इनका एक एक सैनिक जो है 10-10 पर भारी पड़ रहा था। इस तरह से फ्रेंच की इस पर विजय हो जाती है। अब ब्रिटेन वाले देखते हैं कि हर तरफ से हमें मुंह की खानी पड़ रही है, तो ब्रिटेन वाले बहुत चालाक थे। जब भी हारते थे तो संधि बहुत तेजी से करते थे। वो तुरंत एक्सला चैपल संधि करते हैं। इसके तहत क्या करते हैं, अपनी युद्ध को एंड कर दिया जाता है। और जो लुइसबर्ग जो प्रांत था ये कनाडा में था, अमेरिका में ये कनाडा लुइसबर्ग वाला क्षेत्र था, ये पहले फ्रांस के अधीन था, लेकिन ब्रिटिशों ने इसको अपने अधीन कर लिया था। अब इस संधि के द्वारा जो लुइसबर्ग था जो फ्रांस को लौटा दिया गया। बदले में क्या मिला फ्रेंच को, फ्रेंच ने क्या किया कि फ्रेंच वालों ने ये वाला प्रांत ब्रिटिशों को लौटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशों को भी फायदा हुआ और इनको भी फायदा हुआ। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट कर्नाटिक वार खत्म होता है। अब देखिए सेकेंड कर्नाटिक वार। द सेकेंड कर्नाटिक वार 1749 to 1754, since France became the main power in this Carnatic region, so they were collecting revenue from the Nizam of Hyderabad, but Nizam didn't want to give money as a revenue. But time Muzaffar Jung and Nazir Jung wanted to become a new king, so Muzaffar Jung, Chanda Sahab had taken help from the French, and Anwaruddin and Muhammad Ali supported Nazir Jung. In this war, English also helped to Nazir Jung, and Robert Clive came, and after that, this Robert Clive won. It means British East India Company won in this battle. अब देखिए सेकेंड कर्नाटिक वार में क्या हुआ, जो 1749 से लेके 1754 तक चला। इसमें फ्रेंच चूँकि बहुत बड़ी पावर बन चुकी थी, इसलिए वो रिवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। सोचो, निजाम ऑफ हैदराबाद से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। अब इधर जो है मुजफ्फर जंग और नजीर जंग, इसमें जो है गद्दी को लेकर जो है वार छिड़ जाता है। अब यूरोपियन यही तो चाहते थे कि ये लोग अपने में लड़ते रहें और हम जो है अपना पैसा बनाते रहें। तो फ्रेंच वालों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया, जिसमें चांदा साहब भी साथ में थे, और इधर इंग्लिश वालों ने अनवरुद्दीन, नजीर जंग, मोहम्मद अली, ये सब थे। अब इधर इनको ये घायल हो जाते हैं और इनके सन जो है मोहम्मद अली भाग जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों के सपोर्ट के कारण ये लोग जीत जाते हैं। अब देखिए थर्ड कर्नाटिक वार। द थर्ड कर्नाटिक वार 1756 to 1763. Britishers wanted Chandnagar, so they attacked on Chandnagar. So they fighted with French. Britishers occupied this occupied, and after that they also occupied this area, Pondicherry. And right now, French East India Company dissolved in 1770.